Okay, now we are going to prove P implies Q and negation of Q, therefore negation of P. So this is first hypothesis, this is second hypothesis, and my conclusion is therefore negation of P. So let's prove this by the method of truth table. So if there are two variables PQ, there are total 4 combinations: true, 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 false, false, true, and false, false. Now P implies Q is false only in the case where true implies false, and rest all are true over here. Okay. Similarly, Q का negation of Q is true, false, false, true, true, false, false, true. Okay. Then लेट्स एंड दीज टू. ये पहला हाइपोथेसिस हो गया, ये सेकंड हाइपोथेसिस हो गया. तो दोनों को एंड किया. दोनों को एंड करने पे जहां पर भी एक फॉल्स रहेगा तो ये रिजल्ट फॉल्स होगा. तो यहाँ पर फॉल्स आ गया, यहाँ पर फॉल्स आ गया, यहाँ फॉल्स आ गया. ओनली इन लास्ट केस वेयर बोथ आर ट्रू द रिजल्ट इज ट्रू. And then next is, let's find out negation of P. This is negation of P. True, true, false, false, both false, true. And the last one is this implies this. This implies this. This implies this. So again, both false, true, both false, true, false implies true is true, true implies true is true. Since we find that all are true, so it is tautology and it is a universally valid conclusion. So universally correct, universally valid hai. Okay. So the best application for this is where you cannot possibly go through a large number, such as infinite of the cases, to prove that everyone is true. So here let's see how do you do it. Here if we have so many variables, so many variables, then in that case it is not possible to do it. Okay, prove it one by one. Now let's see one of the example. Say prove that root 2 is irrational. That is, it cannot be represented with m by n, where m and n are integers. So if we need to prove this by contradiction method, root 2 is irrational. So how do you represent it in the modus ponens form and prove that it is valid? So let's prove it by contradiction method. P is root 2 is rational. Q is there exist integers m and n for every rational number such that the rational number can be expressed as m by n. Okay. Now since root 2 is irrational, we need to prove. Okay. So how do you do? We take root 2 is irrational as one of the preposition, and Q we take that there exist integers. There exist integers. Just a minute. There exist integers m and n for every rational number such that the rational number can be expressed as m by n. Okay, so this can be represented by m by n. This statement is being represented by Q. So P और Q हमने form कर लिया. Now P implies Q. P implies Q is the entire statement. If root 2 is rational, if root 2 is rational, ये देखो ये rational लिया है, यहाँ पर irrational prove करना, ये rational लिया. If it is rational, then we can find m and n. Then we can find m and n. Cannot be represented with m and n. ये not है, ये भी not है, मतलब irrational है, so it cannot be represented in m by n. तो हमने किससे लिया मेथड? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? उसका उल्टा. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रडिक्शन? कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स व्हाटएवर इज बीइंग गिवन टू अस वी टेक अपोजिट ऑफ दैट. जो भी दिया हुआ है उसका उल्टा लेना है. यहाँ पर इरैशनल दिया हुआ है तो हमने इसको रैशनल लिया. सपोज p is root 2 is rational. So you have to prove that root 2 is irrational. So what we do, we take it contradiction. Contradiction says you take opposite of that. So what is to be proved is irrational. तो हमने कहाँ से शुरू किया? That p root 2 is rational. And the second one, that is q. Q cannot be represented with m by n. Cannot को हमने क्या कर लिया? There exist integers m and n for every rational number such that the rational number can be expressed in m by n form. So m and n are some integers and the rational number can be represented in m by n form. Okay, cannot को हटा दिया.
Now P implies Q. Simple statement becomes root 2 is rational. Then we can find M and N. Root 2 is rational and then we can find M and N. अब उसका उल्टा लेते हैं. The goal is to prove that we cannot find an M and N, that is negation of Q is true. हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि हम we cannot find M and N because it is irrational. ये हमारा गोल है. That is negation of Q is true. हमको क्या प्रूव करना है? That is negation of Q is true. Q क्या है हमारा? Yes वाला आंसर है और हमको प्रूव क्या करना है? Cannot वाला. तो negation of Q is true ये हमको प्रूव करना है. Okay. Now assume M by N whole square is equal to 2 and that M and N are in their most reduced form. This means that M square is equal to 2N square. Okay. So we assume that M by N whole square is equal to 2. Root 2 है ना ये देखो यहाँ पर root 2 है. So M by N के फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो M by N का स्क्वायर और root 2 का 2 हो गया. It is like this. M by N is in the form that root 2 can be represented. Okay, now taking square of both the sides, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 2 आ गया. और m by n का स्क्वायर कितना आ गया? m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. तो ये हमारा कैसे हो गया? m स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर हो गया. ठीक है, ये देखो यहाँ पर किया m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और रूट 2 को 2 बना दिया और ये n स्क्वायर जो है ये ऊपर चला गया तो ये 2n स्क्वायर हो गया. दैट मींस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर. Okay, therefore m must be even. m must be even because m square is equal to 2n square है ना. तो m must be even क्योंकि 2 का मल्टीपल आ रहा है. And m square must contain 2 raised to power of 2 square. m square क्या contain करना चाहिए? 2 raised to power of 2 square. That is even number contain करना चाहिए. Therefore n must be even. n जो है वो even होना चाहिए. ठीक है. So therefore m by n is not in the most reduced form. वो reduced form में नहीं है. So we can pull a 2 out of both m and n. m और n में से 2 जो है वो निकाल देंगे तो वो reduced form में नहीं है, जबकि हमने पहले बोला था कि वो reduced form में है. तो हमारा जो assumption था वो गलत हो गया. Okay, so this is our contradiction. जो हमने assume किया था that is wrong. So it cannot come up with m and n, that is negation of q is true. That is, this is wrong. So therefore negation of p is true and root 2 must not be rational. That is, root 2 is irrational. तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये हुआ कि जो हमको दिया हुआ है उसका हम अपोजिट लेकर चलेंगे और प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा अजम्पशन है वो करेक्ट है, पर जो अजम्पशन है वो गलत निकल जाता है. देखो यहाँ पर हमारा अजम्पशन क्या निकल गया कि इवन नंबर है, जो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. मतलब m और n को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं 2 को, रूट 2 को. तो दैट मीन्स हमारा negation of q is true. This statement is false. Negation of q is true. That means it cannot be represented. It cannot be represented in m by n form. So therefore root 2 is also irrational. तो हमारा जो assumption था वो गलत हो गया. तो negation of p is true and therefore p क्या था? rational number. Negation of p क्या हो गया? irrational number, not rational number. So this is how do you prove. Okay. Good morning one and all. Today is 18th March 2021 and we'll be beginning with permutations. Permutations, let's begin with that. Sequences derived from a set. That is, this is the topic. We'll begin with sequence derived from a set. Assume we have a set A containing n elements. This is discrete mathematics first chapter. That is, there is a set A. Set A consists of some elements. How do you represent a set A? Set A is equal to curly bracket and some elements in the set. Example includes alphabets, digits, pair, playing cards, A, comma B, comma C, comma D. It is list of all alphabets, suppose up to Z. Integers, say for example 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2. This is a set. So we can produce sequence from each of these sets. In sets में से हमको क्या produce कर सकते हैं हम? Sequence. Now what are the different types of sequence from a set? There are a number of different ways to create a sequence from a set. In any order, duplicates allowed. Any order, no duplicates allowed. Order matters, duplicate allowed.
order does not matter, no duplicate allowed. That means these are the different ways, permutations. What are the different ways in which these sets can be represented? उस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कोई भी ऑर्डर में डुप्लीकेट अलाउड है, कोई भी ऑर्डर में पर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है. ऑर्डर मैटर करता है, डुप्लीकेट्स अलाउड है. ऑर्डर मैटर करता है और डुप्लीकेट्स भी अलाउड नहीं है. तो ये 4 तरीके हो गए जिसमें हम सीक्वेंस को, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम अ सेट. Now let's classifying real world sequences. Determine the size of a set A and easily and classify each of the following as one of the previously listed types of sequences. अब हम इसको classify करते हैं. जो हमने set के बारे में बताया था, तो कुछ example लेते हैं कि हम उसको कैसे classify करेंगे. Classify each of the following as one of the previously listed types of sequence. मतलब ये जो हमने 4 type की sequence बोले थे, जहाँ order duplicate, order no duplicate, order matters, duplicates allowed, order matters, no duplicates. Any order, no duplicates, any order, duplicates, order, duplicates, order, no duplicates. ये 4 तरीके हो गए. ये 4 तरीकों में से इनको आपको अरेंज करना है कि कौन से तरीके हैं. 5 कार्ड स्टड पोकर 5 कार्ड स्टड पोकर. कार्ड्स का गेम है. कार्ड्स का ये है कि जहाँ पर 5 कार्ड्स को हमने अरेंज किया हुआ है. ठीक है, तो इसको हम किस में सीक्वेंस में डालेंगे, किस में डालेंगे? इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में डालेंगे बताओ. फोन नंबर्स को हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? किसी के भी फोन नंबर है, चलो बताओ. किसी के भी फोन नंबर्स की अगर मैंने लिस्ट बनाई है तो वो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहता है. डुप्लीकेट्स अलाउड रहते हैं, डुप्लीकेट्स नहीं अलाउड रहते हैं, कोई ऑर्डर मैटर करता है. इन चारों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? मोबाइल नंबर्स लिखा है ना, एक से ज्यादा फोन नंबर्स है, तो इसका क्या है सीक्वेंस बताओ. उसका सीक्वेंस कौन सा होगा? मोबाइल नंबर, जैसे अगर मेरा मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, हमेशा मोबाइल नंबर यूनिक रहता है. क्या मोबाइल नंबर डुप्लीकेट होता है? नहीं होता है. तो नो डुप्लीकेट वाला पार्ट आ गया, ये वाला नो डुप्लीकेट और ये नो डुप्लीकेट. तो क्या उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है? जब हम उसको अरेंज कर रहे हैं मोबाइल नंबर को एक के नीचे एक, तो वो कोई भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो. तो एनी ऑर्डर, नो डुप्लीकेट्स. और अगर आप उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो ये ऑर्डर मैटर्स, नो डुप्लीकेट्स भी आ सकता है. लाइसेंस प्लेट्स. अब लाइसेंस प्लेट्स कैसे होती है? अगर फोन नंबर की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर हम एसटीडी कोड के साथ में फोन नंबर लेते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर मैटर करता है कि किस पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको उसको लिखना है. वो फोन नंबर को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको लिखना है. ठीक है, जब मैं लाइसेंस प्लेट की बात करती हूँ तो लाइसेंस प्लेट में एरिया कोड आता है, पहले सबसे पहले आता है सिटी कोड, MH महाराष्ट्र, ओके, कर्नाटका के कर्नाटका के क्या है, KR शायद, ओके. Similarly UP, okay, MP, you have these alphabets for the state, महाराष्ट्र स्टेट या जो भी पर्टिकुलर स्टेट है उसके लिए, फिर उसका रीजन का कोड, फिर उसके बाद में उसका प्लेट आएगा. सो in which order we have to write and in which way we have to write. So out of these 4, in which category you place it. Similarly लूटो नंबर मीन्स जो आप ऑनलाइन लॉटरी खेलते हैं या फिर ऑफलाइन लॉटरी खेलते हैं, उसके नंबर्स किस ऑर्डर में निकाले जाते हैं और उसका सीक्वेंस कैसा हो सकता है. बाइनरी नंबर्स, ठीक है. विंडोज एक्सपी CD की नंबर, जो की रहता है उसका की का फॉर्मेट वो किस ऑर्डर में रहेगा और किस में रहेगा, वो मैटर करता है कि नहीं. वोट्स इन अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कोड्स फॉर 5 डिजिट CSCI door locks. These are some of the examples. Now we are going to place it under these 4 categories, okay, and see in which category it fits. Okay, now multiplication principle of counting. How do you do that? The first type of sequence we will look at is where duplicates are allowed and their order matters. पहला वाला sequence क्या था? Any order and duplicates allowed. So first type of sequence we will look at is where duplicates are allowed and their order matters. Suppose that order matters means हमने इसकी बात कर रहे हैं, order matters and duplicates allowed. Third time, suppose that 2 tasks T1 and T2 must be performed in sequence. 2 tasks sequence में perform हो रहे हैं. If T1 can be performed in N1 ways and for each of these ways T2 can be performed in N2 ways, then the sequence T1 T2 can be performed in N1 into N2 ways. Okay, are you getting this?
मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब सपोज अगर हमारे पास में कुछ एक टास्क है, सपोज एक टास्क जो है कौन सा टास्क हो गया, आई हैव अ टास्क ऑफ काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 2 3, 3 नंबर को हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक 3 नंबर के पीछे एक एक पर्सन ने, ये एक पर्सन हो गया, ये दूसरा पर्सन हो गया, ये तीसरा पर्सन हो गया, 3 लोग हैं, 1 2 3 लोग, और हर लोग A to Z अल्फाबेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये पहला पर्सन हो गया, इसने A से लेकर Z तक बोला, ठीक है, 26 अल्फाबेट्स बोले। ये सेकंड पर्सन हो गया, इसने A से Z तक अल्फाबेट्स बोले। ये थर्ड पर्सन हो गया, इसने A से लेकर Z तक अल्फाबेट्स बोले। तो ये कितने वेज में हो रहा है, ये 3 वेज में हो रहा है। ये कितने वेज में हो रहा है, ये 26 वेज में हो रहा है। A B C D अप टू Z 26 अल्फाबेट्स। तो हर एक पर्सन 26 बोलता है, दूसरा पर्सन 26 अल्फाबेट्स बोलता है, तीसरा पर्सन 26 अल्फाबेट्स बोल रहा है। मतलब 3 into 26 is the number of the ways in which the entire operation is being performed. कितना हो गया, 3 6 18 8 carry 1 6 78 ways में हो गया। That means 3 into 26 ways, which is our multiplication principle. ये कौन सा principle हो गया, multiplication principle of counting. Now it is extended previous examples to the T1 T2 Tk, solution becomes n1 n2 nk। मतलब अगर हम लोग टास्क को ज्यादा बना देंगे, अगर हमारे पास में 2 टास्क की जगह 4 टास्क हो जाते हैं, तो पहला टास्क हो गया T1, दूसरा टास्क हो गया T2, तीसरा T3, चौथा T4। अगर T1 टास्क n1 वेज में हो रहा है, T1 टास्क n1 वेज में हो रहा है, T2 टास्क n2 वेज में हो रहा है, T3 टास्क n3 एंड T4 टास्क n4 वेज में हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल 8 कैरेक्टर पासवर्ड्स, फर्स्ट डिजिट मस्ट बी अ लेटर। 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है तो पहली डिजिट क्या होगी, एक लेटर होगी। एनी कैरेक्टर आफ्टर दैट कैन बी अ लेटर और अ डिजिट, उसके बाद में कोई भी एक लेटर या फिर कोई भी एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो कितना कैरेक्टर का बोल रहा है, 8 कैरेक्टर का, 8 कैरेक्टर पासवर्ड। I'll just write first digit must be a letter A, any character after that, चाहे B लिखेंगे और एक डिजिट लिख सकते हैं, 1 2 1 4 5 B 8 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या सीक्वेंस हुआ, फर्स्ट डिजिट मस्ट बी अ लेटर, ये पहला वाला जो प्लेस है उस पे हमारा एक लेटर है, उसके बाद में या तो लेटर हो सकता है या तो डिजिट हो सकता है, तो उसके बाद में हमने या तो लेटर लिखा या तो डिजिट लिखा, ठीक है। अब इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये देखो, पहला प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे कितने अल्फाबेट्स आ सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे कोई भी 26 अल्फाबेट्स आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड प्लेस पे A to Z कुछ भी लिख सकते हैं, सेकेंड प्लेस पे मैंने क्या लिखा, डिजिट लिखा। कितने डिजिट्स है, 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 10 हो गए। उसके बाद में कितने अल्फाबेट्स हो सकते हैं, A से लेकर Z तक अल्फाबेट्स हो सकते हैं, मतलब 26 अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो सेकेंड प्लेस पर क्या आ सकता है, सेकेंड प्लेस पर या तो डिजिट आ सकते हैं या तो अल्फाबेट्स आ सकते हैं। तो ये 36 चीजों में से, चाहे 0 से लेकर 9 तक या A से लेकर Z तक, इन 36 में से कोई भी एक चीज आ सकती है। तो ये 36 डिफरेंट वेज में हो गया ये टास्क। नेक्स्ट वाला प्लेस भी है वो 36 डिफरेंट वेज में, सारे के सारे 36 डिफरेंट वेज में, टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सिर्फ जो पहला वाला प्लेस है उसके ऊपर कंस्टेंट है कि वो अल्फाबेट होना चाहिए, तो अल्फाबेट सिर्फ 26 है और अल्फाबेट प्लस डिजिट मिलाकर 36 है। तो ये सेकंड प्लेस पे से लेकर 8th प्लेस तक का 36 कुछ भी आ सकता है, या तो एक लेटर आ सकता है या तो डिजिट आ सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट वेज, मल्टीप्लाई किए इन लोगों को।
26 into 36 into 36 into 36 into 36 into 36 into 36 into 36. So I'll get this bigger number. So these are the different ways in which this password can be cracked. तो आपको अगर सपोज 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रैक करना होगा तो यू नीड सो मेनी डिफरेंट वेज, इतने पूरे डिफरेंट वेज आपको ट्राई करने पड़ेंगे पासवर्ड को क्रैक करने के लिए. चलो अब मैं दूसरा लेती हूँ. एटीएम पिन का बताऊं. एटीएम पिन का हाउ मेनी डिफरेंट वेज इन विच एटीएम पिन कैन बी सेट और कैन बी क्रैक्ड. चलो बताओ, हाउ मेनी डिफरेंट वेज इन विच एटीएम पिन कैन बी क्रैक्ड. Quickly answer the question. See, in ATM pin consists of 4 digits. First digit can be 0 to 9, second digit can be 0 to 9, third digit can be 0 to 9, and fourth digit can be 0 to 9. So in what different ways this password can be regained? तो पहला वाला जो है वो 10 different ways होंगे उसके. सेकेंड वाला कितने 10 different ways हो सकते हैं उसके. थर्ड वाला कितना हो सकता है 10 different ways में हो सकता है 0 से 9. और लास्ट वाला कितना हो सकता है 10 different ways. तो हमारे पास में कितना आ गया, आई गेट 1 के बाद में 4 0. 10,000 are the different ways in which the ATM pin can be find out. बट हमको कितने अटेम्प्ट्स अलाउड रहते हैं, ओनली 3 attempts are allowed. 3 bad attempts. 3 bad attempts के बाद में 4th attempt के ऊपर वो लॉक हो जाता है. Okay, so this is the different ways in which the ATM pin can be generated. Similarly, let's see 25 characters of letters or numbers. जो हमारा सॉफ्टवेयर का लाइसेंस सॉफ्टवेयर रहता है उसकी कितनी कीज कितना की मतलब की कितनी लेंथ रहती है 25 कैरेक्टर का या फिर नंबर्स रहते हैं. मतलब या तो डिजिट रहती है या तो कैरेक्टर रहते हैं. तो टोटल 36 कितनी बार 25 बार. 36 into 36 into 36 हाउ मेनी टाइम्स 25 टाइम्स. ये इसका डिफरेंट वेज है. 36 रेज़ टू पावर ऑफ 25 टाइम्स हम आपको उसकी हम कीज को यूज कीज मतलब ये नंबर्स कीज फाइंड आउट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है. जो हमारा लाइसेंस सॉफ्टवेयर रहता है वो 25 कैरेक्टर का लंबा रहता है. वो 25 कैरेक्टर का लंबा हम कैसे ट्राई कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकती है उसकी की. तो पहले वाले प्लेस के ऊपर कोई भी ये 36 जो है इनमें से या तो कैरेक्टर या तो डिजिट आ सकता है. सेकंड वाले प्लेस पे 36 कुछ भी आ सकता है. ऐसे कितने प्लेसेस हो गए 25 प्लेसेस हो गए. तो 36 रेज़ टू पावर ऑफ 25 are the different ways in which XP 2000 software keys can be recognized. Okay, now I'm stopping the lecture here only today.